So back to cricket is going to be Himanshu Patil open the bowling attack. और ये भिवंडी की जनता है सिद्दीक बाबे, Yes, अच्छे खेल की जरूर यहाँ पर सराहना होगी। three fielder inside the ring. Himanshu Patil facing him Rajat Munde. रजत मुंडे भारत के बहुत ही स्टाइलिश एलिगेंट बैट्समैन माने जाते हैं। Man from Sambarli. तीन खिलाड़ी सर्कल के अंदर स्टार्ट टू एंड कम से कम रहना कंपलसरी। One of the great player Rajat Munde, who made the highest 50 in this season in Raigarh area. So it's going to be Himanshu Patil, left arm over the wicket, facing him left-handed batsman Rajat Munde. Packed crowd here, here at the heart of city challenge cricket ground. Rajat Munde facing Himanshu Patil, who turned from Asha Patil northeast end. Goes pass off. Goes to Rajat, beauty. Beats batsman, beats wicket keeper. Rajat try to drive. Ajay, what do you think? Fine start from Himanshu. जी हाँ, बहुत अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज को फुटवर्क को टेस्ट करती हुई गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल जो गाइडलाइन होती है अंपायर के लिए, उसके थोड़ी सी अंदर से चली गई थी और बहुत दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास किया था वहां पर रजत ने। What a start from Himanshu Patil. Here he go. Left arm over the stumps. Goes to Munde, pulls it. But fine fielder Bhavesh Pawar is there at deep mid wicket. And with the stroke batsman through for one, Raigarh off the mark with single and Rajat Munde off the mark with single. मेयर कप के इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कि एमआरई गेंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस गेंद को ठीक तरह से टाइम करने के लिए आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा फुटवर्क आपका होना चाहिए, बॉडी बैलेंस बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, ताकत का भी भरपूर इस्तेमाल करना होगा स्ट्रोक्स में बाउंड्री को क्लियर करने के लिए। Yes, now Kiran Pawar on his strike, one of the great batsmen, man from Saule, facing a man from Alimgarh, Himanshu Patil. Turn from famous stand, Asha Patil north stand. What an atmosphere, packed crowd here. And you are watching high voltage match between Raigarh and Thana. Himanshu Patil, left arm over the stumps. Goes to Kiran, try to square cut and white signal from umpire. Away from the off stump. हिमांशु की एक खासियत रही है कि वो गेंदों को दोनों तरफ स्विंग कराने की काबिलियत रखते हैं। पहली गेंद हमने देखी, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकली थी बायर के बैट्समैन के लिए। ये हालांकि उनकी स्ट्रोक बॉल थी लेकिन दिशाहीन रही, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, टप्पा पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर निकली थी। Himanshu Patil, 2 without loss. Raigarh losing a toss, batting first year in the historical match here at the Challenge Cricket Ground. Himanshu Patil, long run up to the wicket now. Lush green outfield. Left arm over the wicket. Misses tapping there. Red ball signal from umpire Vijay Wagmare. जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े होंगे उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये मुकाबला 6 ओवर्स का है। Himanshu Patil. बहुत अच्छा बॉक्सर कॉल ब्यूटीफुली, but there is the fielder and finally Kiran Pawar is out. बहुत ही शानदार कैच और पहली सफलता अपने टीम को दिलाते हुए हिमांशु। जयेश पाटिल थे वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, बहुत ही जबरदस्त कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक। I think slightly two-minded is so played by Kiran Pawar. Interesting to see in replay. You can see there. हाँ बिल्कुल सिद्दीक बाबे, पूरे मन से स्ट्रोक नहीं खेला गया था। खेले ना खेले आखिरकार उन्होंने बल्ला तो चलाया लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में नजर नहीं आए। हालांकि स्क्वायर बाउंड्रीज का जहां तक सवाल है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर थोड़ी छोटी है स्ट्रेट बाउंड्रीज की तुलना में, लेकिन जयेश पाटिल जैसे खिलाड़ी जब बाउंड्री पर रहते हैं तो बैट्समैन का बचना बहुत मुश्किल होता है जब गेंद हवा में जाती है। यदि आपको बचना है तो उनके ऊपर से खेलना होगा। जयेश पाटिल के हाथों में गेंद जब जाती है तो वो उनके हाथों में पूरी तरह से कैद हो जाती है। और फिर के बहुत ही जबरदस्त फील्डर है। New batsman in Sumit Dongre, man from Pargaon. And what a
performance from Sumit Dongre in Raigarh Premier League. Player of the tournament in Raigarh Premier League, one of the class, great player. But I think Himanshu Patil delighted, claimed the very important wicket, and what a taken by Jayesh Patil in deep. Himanshu Patil, left arm over the wicket. This time goes his back foot and cuts that ball. Control cut shot. Straight to Scottish Starman. Enough time batsman gets one. 1-2 total now. Score moves up to 3 for the loss of 1 wicket. First over in progress. I think very steady start from Raigarh team. हाँ बिल्कुल धीमी शुरुआत है, एक विकेट भी उन्होंने गवा दिया है, बिना कोई रन बनाए किरण पवार आउट हुए जिनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, हमेशा रहती भी है। और हिमांशु पाटिल देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेंथ का परिवर्तन, जिस तरह से उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद पर विकेट चटकाया है वो काबिल तारीफ है। Himanshu goes to Rajat, goes his back foot and punches ball. Once more, Jayesh Patil is there. Lovely looking stroke ending, thumping cover drive, but fine defender in deep. थोड़ी सी कमजोर गेंद रही थी इस बार हिमांशु द्वारा, मुझे लगता है कि मौका पूरी तरह से बुना नहीं पाए बैट्समैन रजत मुंडे। जरूर चौका वो हासिल कर सकते थे, थोड़े से निराश रहेंगे अपने आप से क्योंकि जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए, लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए। Score is 4 for the loss of 1 wicket. Raigarh. First over in progress. Himanshu Patil. Ball is time pull. There is the fielder in deep. Yes, he's out. ठाणे के समर्थक काफी खुश, हिमांशु ने कमाल कर दिया है। पहले ही ओवर में 2 करारे झटके दिए हैं रायगढ़ टीम को। पुल लगाने की कोशिश की थी लेकिन बहुत अधिक शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी और ऑफ स्टंप के काफी बाहर से ये फुल शॉट खेलने का प्रयास किया था। काउ कॉर्नर की दिशा में विवेक शेलार मौजूद थे, बहुत ही आसान कैच। देखिए अजय गरत कहीं ना कहीं शॉट के पीछे एलिवेशन नहीं मिला था, अपने आप को पूरी तरह घुमा नहीं पाए थे, या तो ये कारण रहा था कि उछाल को भाप नहीं पाए थे। वो खेलना चाहते थे, ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पे गेंद चली गई थी वाइडिश मिड विकेट पे। मरता क्या ना करता, टीम के कैप्टन बल्लेबाजी को आ रहे हैं ओमकार पाटिल। क्या ओवर रहा हिमांशु का, जहां पर उन्होंने केवल 4 रन दिए और 2 विकेट। इट हैज बीन एक्सीलेंट ओवर टर्न फ्रॉम हिमांशु पाटिल। गजब की शुरुआत की है हिमांशु पाटिल ने। ओमकार पाटिल अच्छे स्ट्राइकर माने जाते हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब एमआरआई की गेंदों से मैचेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को एक तो कंडीशंस को भी एसेस करना पड़ेगा और इस गेंद के अनुसार भी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ये देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी जिसको वो कट भी कर सकते थे, लेकिन ऑन साइड में तारामंडल में भेजने का प्रयास किया था और बाउंड्री को पार नहीं कर पाए। ओमकार पाटिल टीम के कैप्टन बल्लेबाजी को आए हैं, जबकि गेंदबाजी के लिए विवेक शेलार को लगाया गया है। ये अच्छा बैटल है। ओमकार पाटिल मैन फ्रॉम मोरबी, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्ट एंड से जाते हुए पहली गेंद स्लाइस करते हुए बैकआउट पॉइंट पे बढ़िया फील्डिंग, लेकिन चुरा लिया है तुमने जो रन को, रन चुराते हुए बल्लेबाज। खाता खुला ओमकार का। कुल स्कोर है 5 रन 2 विकेट, नॉट इनफ टोटल। निराशाजनक शुरुआत रही है रायगढ़ टीम की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए इस एग्जीबिशन मैच में ठाणे टीम के विरुद्ध 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर विवेक शेलार की शुरुआत वैसे उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है। पहली गेंद लूजनर रही थी, लेकिन किस्मत अच्छी रही उनकी कि बैट्समैन गैप में नहीं खेल पाए। और जो भी कमजोर गेंदें मिलेंगी रायगढ़ टीम के बल्लेबाजों को, उसका जरूर फायदा उठाना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि 6 ओवर के खेल में कौन सा अच्छा टोटल हो सकता है रायगढ़ टीम के लिए? इस बीच अगेन बहुत खूबसूरत ऑन ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद है। कलाइयों के बलबूते पे खेला हुआ स्ट्रोक 1 रन। देखिए अजय, मेरा अपना मानना है कि ये जो विकेट है और जिस तरह की गेंद मापुर चषक में यूज की जा रही है, 51 ऑफ द मैजिक टोटल इफ यू हैव यूनिट ऑफ बॉलिंग इन योर साइड। अगर आपके पास गेंदबाजी का एक यूनिट है तो 50-55 का जो लक्ष्य है एक अच्छा टोटल माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, मेयर कप के इतिहास में यह हमने देखा है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जब अंडर फ्लड लाइट्स मैचेस होते हैं। हालांकि ये संस्करण मेयर कप का काफ़ी अलग है। एमआरआई की गेंदें इस्तेमाल की जा रही है, पहले एमआरआई की गेंदें इस्तेमाल की जाती थी और उस पर भी हमने देखा है कि 50-55 बहुत अच्छा टोटल रहा है। विवेक शेलार इस मरतबा चॉप करना चाहते थे, वाइड यॉर्कर थी,
बल्ले के नीचे से निकल गई विकेट कीपर के पास। आज जो मैचेस है उनकी रूपरेखा मैं आपको बताता चलूं। भारत का A1 क्रिकेट आप देख रहे हैं, महापौर चषक 2021। अगला मुकाबला दोनों कैप्टन को तैयार रहना है SK एंटरप्राइजेस और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब के बीच में भिवंडी ओपन से। इस बीच अगेन बॉलर बैक ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में बम्बार्ड किया, वहां पर अपील, बिलाल शेख ने बेल्स गिरा दिए थे लेकिन अपनी क्रीज में पहुंच गए बैट्समैन। उसके बाद आप देखेंगे मौली स्पोर्ट और हमजा स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला भिवंडी ओपन क्रिकेट से। उसके बाद आप देखेंगे सिटी इमर्जिंग जूनियर क्रिकेट से जॉली वड़ाल देवी स्पोर्ट्स और विक्टोरियन स्पोर्ट्स के बीच में। और आखिर में आज रात आप देखेंगे 40+ ओल्डी गोल्डी क्रिकेट में रोहन स्पोर्ट पोगांव और साई कुरपा डुंगे के बीच में। ये आज के मैचेस की रूपरेखा। विवेक शेलार अभी तक आजादी नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद है, 1 रन। आप दोनों बल्लेबाज अजय टाइम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन प्लेसमेंट कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे। जी हाँ, टाइम अच्छा कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकते क्योंकि 6 ओवर का मैच है। हाथ खोलने होंगे, बड़े शॉट्स भी लगाने होंगे यदि बड़े टोटल की तरफ देखना है तो रायगढ़ टीम को। बहुत खूब। विवेक शेलार, आशा पटेल नॉर्थ स्टैंड से मुड़ते हुए सामना करेंगे टीम के कैप्टन ओमकार पाटिल, मैन फ्रॉम मुरबी। ओ स्विच हिट खोलने की कोशिश, बैट्समैन को पढ़ लिया था वहां पर। क्या खूबसूरत गेंद थी, बाल बाल बच गए। बहुत ही जबरदस्त गेंद थी ये देखिए, पहले स्टांस चेंज कर लिया था और जानबूझकर लेग स्टंप के थोड़ा बाहर किया। हालांकि लेग स्टंप उड़ाने का प्रयास था लेकिन थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर चली गई थी दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए। उल्टा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह से चूक गए बैट्समैन ओमकार पाटिल और विवेक शेलार का ये बहुत ही शानदार ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए अजय गरत माना कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है, लेकिन सिंगल से काम नहीं चलेगा। पहले 2 ओवर जो इनिशियल थे उसमें गेंदबाजी हावी रही है और अगले दौर में क्या होते हैं जबकि भावेश पवार स्वयं आए। आइए सुनते हैं अजय गरत से। भावेश पवार थाने टीम के कैप्टन और जो पिछला मुकाबला इन 2 टीमों के बीच में हुआ था रायगढ़ प्रीमियर लीग में कसरखंड में, वहां पर शानदार गेंदबाजी की थी भावेश पवार ने। 5 विकेट्स लिए थे, हैट्रिक भी चटकाई थी। गेंदबाजी में कमाल किया था कैप्टन भावेश पवार ने। अजय क्या समय है, आज वैसे भी वैलेंटाइन डे, योम मोहब्बत प्रेम दिवस है और कहा जा सकता है कि चैलेंज क्रिकेट पे क्रिकेट दिवस है। बिल्कुल बिल्कुल सही। भावेश पवार की पहली गेंद, खूबसूरत शॉट, बैट का फेस खोला है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है। जब भी बल्लेबाजों ने अच्छा टाइम किया है स्ट्रोक को, गैप नहीं ढूंढ पाए हैं और यही बहुत बड़ी समस्या रही है रायगढ़ टीम को। अभी तक के खेल में कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला है। अभी भी पहले चौके या छक्के का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शक। थोड़ा शांत क्रिकेट चलता हुआ है, जिस तरह से बल्ले के फेस को खोला था, हालांकि फ्लैशी स्क्वायर ड्राइव किया था। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गैप भी पूरी तरह से हालांकि ढूंढ नहीं पाए लेकिन बढ़िया फील्डिंग। ऐसे लगा कि गैप में जाएगी गेंद। हिमांशु पाटिल थे वहां पर डीप विकेट की दिशा में जबरदस्त फील्डिंग करते हुए अपने टीम के लिए। और जब भी ठाणे और रायगढ़ का मैच होता है हर खिलाड़ी 100% देने की कोशिश करता है और देना भी चाहिए, क्योंकि ये जो मुकाबला रहता है जिसको बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। देखिए किस तरह से स्विंग किया था घुटने के बल बैट के, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। हालांकि हवा में खेलने का प्रयास किया था बैट्समैन रजत ने। ये देखिए फिर से हवा में खेलना चाहते थे लेकिन जमीनी रास्ते से जाती हुई गेंद मिसफील्ड। कम से कम 2 रन तो मिल जाएंगे। इस तरह की फील्डिंग अपेक्षित नहीं होती है इस तरह के मैच में। यस, तीसरा ओवर चल रहा है, अभी तक कोई चौका नहीं आया। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि रायगढ़ टीम के पास अब समय आ गया है कि वो एयर स्ट्राइक हवाई हमला करे। हालांकि कोशिश हो रही है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है बल्लेबाजों को। भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, आगे रखी हुई गेंद। इस बार ड्राइव करना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए ओमकार पाटिल। और ज्यादातर ये रणनीति रही है गेंदबाजों की
और एक खास बात हमने देखी है कि पहले 3 गेंदबाज तीनों भी भिवंडी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर काफी सारा क्रिकेट उन्होंने खेला हुआ है। ये मौका था लेकिन उसको बुना नहीं पाए ओमकार और निराशा स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर झलकती हुई। एक और डॉट गेंद। सबसे बड़ी बात है कि जो गेंदबाज है उन्होंने लाइन ऑफ अटैक ऑफ स्टंप और उसके करीब रखा है और आप देखिए कि गेंदों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। एक और तेज गेंद, देखना है बैट से ही या नहीं। गेंद पीछे जाती हुई शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेग बाई का इशारा करते हुए अंपायर। इस फ्रेंडशिप या फिर आप कह सकते हैं कि एग्जीबिशन मैच के लिए जो अंपायर है वो है विजय वाघमारे और हातिम कपशी। भावेश पवार का ओवर भी समाप्त होता हुआ बहुत जल्दी जल्दी अपना ओवर समाप्त करते हैं। यही तो खासियत रही है भावेश पवार की गेंदबाजी की। 3 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 14 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर रायगढ़। यस, ऑन फील्ड अंपायर विजय वाघमारे और हातिम कपासी, दीज टू आर दी अंपायर। हातिम कपासी एमसीए के अंपायर हैं और विजय वाघमारे ने आईपीएल की जो प्रैक्टिस सेशन मैचेस रहते हैं उनकी अंपायरिंग की है। क्या समय है, जरा जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि ठाणे की टीम इस वक्त हावी होती हुई 3 ओवर 14 रन और 2 विकेट। पलटवार करना होगा यहाँ पर रायगढ़ के बल्लेबाजों को। नया ओवर लेकर विवेक शिलार, इस बार बहुत ही खूबसूरत ड्राइव। गेंद जब हवा में थी तो थोड़ी सी लहराती हुई नजर आई जब बल्ले से निकली थी, क्योंकि इस गेंद का वजन बहुत ज्यादा नहीं है। 1 ही रन मिला है। ओमकार पाटिल क्रीज में पीछे चले गए थे, आप देख सकते हैं रिप्ले में। पीछे जाके गेंद को हॉफली पे लेके कवर ड्राइव किया था लेकिन वहां भी फील्डर को पाया। देखिए अजय, मेरा मानना है जिस तरह की रायगढ़ के पास भी गेंदबाजी है, मेरा मानना है अंगत है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। ज्यादा रन हुए तो ये मैच फिर लो स्कोरिंग भी बड़े मजेदार रहेगा। एक और पुलर लेन गेंद, इस बार एक और अच्छा ड्राइव। गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जयेश पाटिल वहां पर केवल 1 रन। इक्का दुक्का यदि रन बनते रहते हैं यहाँ से तो कैप्टन भावेश पवार और ठाणे टीम को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जिस तरह से खेल अभी तक हमने देखा है, अभी तक जो खेल हुआ है उसमें ये नजर आया है कि गेंदबाजों का बोलबाला पूरे टूर्नामेंट में शायद रह सकता है। 6 ओवर के मैच में 40-45 भी एक अच्छा टोटल साबित हो सकता है। एक और दर्शनीय ड्राइव, लेकिन गैप में नहीं खेल पा रहे हैं। छितराया हुआ फील्ड प्लेसमेंट है, 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर है। इस टूर्नामेंट के जो रूल्स है उसके अनुसार देखा जाए तो पावर प्ले नहीं है, आपको 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखने हैं विकेट कीपर और बॉलर के अलावा, और 6 खिलाड़ी आप बाउंड्री पर तैनात कर सकते हो। Yes, nice looking stroke indeed. He picks on the full and firmly driven, but found the fielder in deep extra cover. मात्र 17 रन बने हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी समय गुजार लिया है रजत मुंडे और ओमकार पाटिल ने क्रीज पर, लेकिन अभी भी कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला है। इस बार ऑन साइड में आगे बैट से खेला है, एक तरह से टाइम नहीं कर पाए। गेंद जा रही है वाइड स्ट्रिप मिड ऑन पर, दूसरे की कोशिश खतरनाक साबित हो सकता है। अपील वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, बैट्समैन पहुंच गए थे। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, 2 रन पूरे। देखिए रजत मुंडे काफी देर से खेल रहे हैं, हालांकि एक डबल अभी जरूर उन्होंने लिया है। कप्तान ओमकार पाटिल है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, जिस तरह कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाब नहीं। ना घी सीधी उंगली से निकल रहा है, ना टेढ़ा कर रहे तो निकल रहा है। कुछ तो अलग करना होगा बल्लेबाजों को तेज गति से रन्स बनाने के लिए। बहुत अच्छी गेंद पैर पर लगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्टंप्स को मिस कर रही थी। लेग बाय के रूप में एक और रन। विवेक शिलार का एक और किफायती ओवर साबित होता हुआ। विवेक का यह दूसरा ओवर है। पहले ओवर में मात्र 5 रन दिए थे, इस ओवर में अभी तक 4 रन खर्च किए हैं। बहुत ही किफायती गेंदबाजी सभी गेंदबाजों ने की है ठाणे टीम के लिए, और ठाणे टीम कहीं ना कहीं खेल में इस समय थोड़ी आगे नजर आ रही है। रायगढ़ टीम कभी भी वापसी कर सकती है। ओमकार के पास स्ट्राइक, स्लॉग स्वीप की कोशिश, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। डायरेक्ट हिट की जरूरत और डायरेक्ट हिट लगा, बैट्समैन आउट। ओमकार पाटिल लौटते हुए पेविलियन की राह पर। कहते हैं कि ये तो होना ही था। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी, देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से बैठक शॉट खेलने की कोशिश, और ये देखिए निशाना ठिकाने पे, और आउट हो गए टीम के कप्तान। सिद्दीक भाभी, आपको नहीं लगता है कि इस मैच में टॉस काफी अहम था? जो जीता ठाणे टीम के कैप्टन भावेश पवार ने, और बहुत ही उचित फैसला उनका पहले गेंदबाजी करने का।
देखिए अजय, मैं ये कह रहा हूँ कि टॉस तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा पूरे महापौर चषक में। ये एवन शो है और एवन शो में आपको एवन परफॉर्मेंस करना होगा। ओमकार पाटिल ने बनाया आउट होने से पहले केवल 6 रन। तीसरा झटका लगा है रायगढ़ टीम को। 4 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है, मात्र 2 ओवर का खेल अब पारी में शेष है। स्कोर 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। आने वाले 2 ओवर्स में आपके साथ रहेंगे सिद्दिक भावे और हरीश पंड्या। 4 ओवर की समाप्ति पे हरीश हम देखते हैं तो अभी भी कोई चौका या सिक्सर नहीं आया है। उसका कारण ये भी है कि गेंदबाजी बहुत ही सुर और ताल में होगी। भविष्य पवार आए। राउंड द विकेट इस बार ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। एमआरई बॉल के जरिए सिद्दीक एक चीज तो पक्की है, मुझे वो पुराने दिन याद आए जब हरीश जगताप और राजू वगड़ इसी मैदान पर सिंगल्स और डबल्स लिया करते थे। हाँ बिल्कुल, मैंने उस दिन भी बीपीएल में जिक्र किया था कि जोड़ी नंबर 1 अगर कोई रही है अभिवंडी के इतिहास में तो वही रही। इस बार पुल कर दिया और ये पहली बार बॉल मैदान के बाहर हवा में लगने वाला गगनचुंबी 6 रजत मुंडे। देखिए सिद्दीक भाई, जीवन में 2 मुंडे से मैं प्रभावित हुआ हूं, एक स्नेहल मुंडे और दूसरे रजत मुंडे। क्या शॉट खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा है। ये देखिए चाबुक जा रही है आउट ऑफ पार्क, हाई एंड हैंडसम। और रजत मुंडे ने भी कह दिया कि रन बंदी नहीं चलेगी। बहुत ही लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पर रजत मुंडे द्वारा। सबसे बड़ी बात है, अगर आप पिच के ऊपर रुकेंगे, पिच किस तरह से बल्लेबाजी के लिए मुफीद है या नहीं उसका अनुमान लगाएंगे। और स्ट्रोक सिलेक्शन, एक और जहां बाकी बल्लेबाज हवा में खेलने गए आउट हुए, लेकिन रजत मुंडे ने गेंद को समझा, परखा और भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाद। हरीश कहाँ जाता है, जहां जाके वही सवेरा। यहाँ से अब वो रनों के लिए जाए। बाविश की गेंद ब्लॉक होल में आती हुई, बॉटम एंड का इस्तेमाल किया था। एक से ज्यादा लेना खतरे से खाली नहीं होगा इस बार। बेहतरीन थ्रो, लेकिन अंपायर विजय वाघमारे वहां पर अब स्टंप सजाने में लगे हैं। 27 for 3 5th ओवर। आप देख रहे हैं महापौर चषक 2021 ब्रॉट टू यू बाय चैलेंज स्पोर्ट्स। Harish, don't be forget Raigad have also a unit of bowling in their side. राउंड द विकेट इस बार ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट। ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था वहां पर जीवित म्हात्रे ने। जीवित म्हात्रे ये भी एक बहुत बड़ा नाम है रायगढ़ क्रिकेट में। रायगढ़ और ठाणा दरअसल ये 2 ऐसे जिले हैं जिनके पास एक गांव एक गढ़ का बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेट है और इसलिए लगभग 365 दिन ये खिलाड़ी क्रिकेट खेलते रहते हैं। इस बार भी गेंद का अच्छा अनुमान लिया, रजत ने थोड़ा रुक कर खेला। शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ और जयेश पाटिल वहां पर गेंद को रोकने में कामयाब रहे। थ्रो दिया बिलाल के पास और स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 30 रन, 5वां ओवर। Yes, Jivit Matre is the big name of Raigad cricket, man from Mulekhand. This time, 1 more to total now. That marks end of the Bhavesh Pawar's over. End of the 5th over. Raigad made only 31 on the board. एक ओवर बचा है और ये आखिरी मौका है रायगढ़ के बल्लेबाजों के पास, खासतौर से रजत मुंडे के पास। हरीश, एक ओवर बचा है। देखिए यहाँ से अगर मेरा अपना मानना है 10, 12, 14 बनाते हैं तो 45 भी एक ऐसा टोटल है। जिस तरह ये विकेट खेल रहा है, मैं समझता हूं कि जिस तरह की गेंदबाजी मौजूद है रायगढ़ के पास भी, ये बहुत ही क्लोज इनकाउंटर हो सकता है। जी हाँ, मेरे ख्याल से क्रिकेट के एक सुवर्ण युग की शुरुआत हो रही है। आमतौर पर हर रविवार को 6 बॉल में 6 6 के चर्चे होते हैं, लेकिन ये बॉल जो है ये गेंदबाजों को भी उतना ही तवज्जो देती है और मेरे ख्याल से ये एक फेयर क्रिकेट की तरफ हमारी आगे कूच है। तो नया ओवर लेकर आ रहे साकिब खान। 5 ओवर 31 रन, 3 विकेट। रजत मुंडे खेल रहे 16 पर 13 गेंदों का सामना किया है। जीवित म्हात्रे खेल रहे 3 पर 3 गेंदों का सामना किया है।
साकिब की गेंद इस बार बैठक शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्लॉक स्वीप था। जयेश पाटिल अपनी पसंदीदा मिड विकेट की पोजीशन पर और 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर अब पहुंचा है 32 रनों पर। Yes, I think Rajat looking very confident. Last one was a turning on the onside in front of his legs. आज मेयर कप 2021 की शुरुआत हुई और बहुत ही भव्य शुरुआत। इंटरनेट पर हजारों दर्शक इसका मजा ले रहे हैं। रायगढ़ बनाम ठाणे का, और साकिब खान छोटे रन पर बाएं हाथ के राउंड द विकेट। इस बार ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन टाइमिंग सही नहीं रहा और यहां पर रन जरूर मिला है। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 33 रनों पर। बाई का ये रन, एकमात्र 6 लगाया रजत मुंडे ने और वाकई में उस 6 की चर्चा रहेगी। तेज गेंद थी और फेंक दिया इसको मैदान के बाहर। ये लगा बेहतरीन स्लॉक स्वीप सिक्सर, अफलातून टाइमिंग। Great stroke played by the left-handed batsman Rajat Munde. You can see they are around the off stump, slogging dashboard, fantastic timing, plenty of power, and ball is racing all the way to the mid-wicket fence for 6. ऐसा लगा कि ब्रैड हॉक को सुरेश रैना ने 6 मार दिया। Absolutely true. Welcome the advocate Mayuresh Patil in Priyanshi studio. Most welcome. 39 for 3। रजत मुंडे टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है, हर रोज प्रैक्टिस करते हैं और जैसे भिवंडी का क्रिकेट रेगुलर चलता है, मुसलसल रायगढ़ का भी क्रिकेट ऐसे ही चल रहा है। और ये वजह है, बॉल भले कोई भी हो, रजत मुंडे की बाहों में वो दम है, गेंद को 1 नहीं 2 बार बाहर भेजा। इस बार काफी ऊपर रही और जयेश पाटिल के सलामत हाथों में आउट हुए रजत मुंडे। साकिब खान ने वापसी की और रजत मुंडे की बेहतरीन पारी पर यहां पर पूर्ण विराम लगा। 23 रनों की पारी खेलकर आउट। यस, दोनों टीमों के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एसके इंटरप्राइजेस और पॉइनियर स्पोर्ट्स क्लब के कैप्टन, सामने जो हमारा मोस्ट वीआईपी व्यूअर्स बॉक्स है वहां पे आपको पहुंचना है। एसके इंटरप्राइजेस के कैप्टन और पॉइनियर स्पोर्ट्स क्लब भिवंडी ओपन से। अगले मैच का टॉस जो है वो नगर रचनाकार सम्माननीय प्रमोद हुंगे पाटिल साहब जो हमारे बीच आए हुए हैं उनके दस्ते मुबारक से होगा। $39 for 4। रजत के आउट होने के बाद अब नए बैट्समैन है करण मडवी, लेकिन यहां पर एक और विकेट। ओहो, अब देखिए इसको क्या कहेंगे। देखिए बेल जल गई लेकिन सिद्दीक बेल भाई, नीचे नहीं गिरी। ऐसा लगा कि महाराष्ट्र राज्य लॉटरी का इनाम 1 डिजिट की वजह से 10,000 रुपए छूट गए। बिल्कुल, साकिब खान भी सोचते होंगे कि बेल क्यों नहीं गिरी। होता है, फनी मोमेंट। उल्टा पुल्टा शॉट था और इस बार 1 रन को हासिल किया है। तेज दौड़, वहां पर विकेट गिरना तय। क्या उम्दा थ्रो निकला था। सिद्दीक भाई, एक चीज माननी पड़ेगी कि बॉल जो है उसकी क्वालिटी अलग है, लेकिन सामने जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है, उसकी जो गुणवत्ता है वो भी हाई क्लास है। जिस तरह किरण पवार का कैच वहां पर जयेश पाटिल ने लिया था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आई थिंक गुड फील्डिंग गिव्स गुड सपोर्ट टू गुड बॉलिंग। तो कुल मिलाकर रन बने रायगढ़ के 40-41 रनों की चुनौती रखी है। जो आस्किंग रन रेट है वो 7 के नीचे। आइए दोस्तों, इंडियन A1 क्रिकेट के अगले मुकाबले के टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो भिवंडी ओपन से है और खेलने वाली टीमें एसके इंटरप्राइजेस वर्सेस पॉइनियर स्पोर्ट्स क्लब और वहां पे मौजूद है हरीश पंड्या।
नगर रचनाकार सन्मान्य होंगे पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होणार आहे आणि दोन्ही संघ नायकांना माझी नम्र विनंती आहे की आपण महापौर दालन जे आहे तिथे उपस्थित राहायचं आहे नाणेफेकसाठी. एक भव्य सत्कार आपण करणार आहोत. महापौर मंडळाचा आपण सत्कार करणार आहोत. नगरसेवक साहेब आपली पालखी महाराष्ट्र संस्कृती आली आहे. ऑल एक करण्यात येत आहे आणि त्याचबरोबर नीलेश चौधरी आपके साथ है और चैलेंज आपके साथ है. बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश चौधरी जी. मी सन्मान्य होंगे पाटील साहेब यांना विनंती करणार आहे आपल्या शुभ हस्ते From legend of टॉस जीता है रानी टीम के कैप्टन भावेश पवार ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला. नगर रचनाकार सन्मान्य होंगे पाटील जी आपल्यास नम्र विनंती आहे आपण नाणेफेकीसाठी उपस्थित राहावं. फाइनली किरण पवार एसके एंटरप्राइजेस for this time pull. वर्सेस Here is the fielder पायनियर indeed. स्पोर्ट्स क्लब. Yes, he's out. एसके एंटरप्राइजेस 2021 में रानी के मतलब समर्थक काफी खुश. हिमाचल शुमाइल इब्न सुसे Again, इस bowler तरह मुस्कुरा back रहे हैं. अपने मतलब 2021 follow की through में अगर पकड़ सबसे दिया. बड़ी बात उनके जीवन की हुई तो वो वहाँ थी पर BPL अपील जीतना. बिलाल और शेख ने बेल्स गिर- मेरे काबिल दोस्त भी है. खूबसूरत शॉट. बैट का फेस खुला है बैकवर्ड पॉइंट पर, वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है. जब भी बल्लेबाजों ने अच्छा टाइम किया है इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. गैप भी पूरी तरह से हालांकि ढूंढ नहीं पाए लेकिन बढ़िया फील्डिंग. ऐसे लगा कि गैप में जाएगी गेंद. हिमांशु एक और तेज गेंद, देखना है बैट से ही या नहीं. गेंद पीछे जाती हुई शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद. लेग बाई का इशारा करते हुए अंपायर. इस बार बहुत ही खूबसूरत ड्राइव. गेंद जब हवा में थी तो थोड़ी सी लहराती हुई नजर आई जब बल्ले से निकली थी. एक और पुलर लेन गेंद. चला आता आपण नाणेफेक करणार आहोत. सन्माननीय होंगे पाटील साहेब आज आपल्या सोबत संध्याकाळपासून जुळले आहेत. हु इज गोइंग टू गिव्ह कॉल? पायनियर स्पोर्ट्स क्लब. टॉस कॉइन आ चुका है. देखिए हेड एंड टेल देख लीजिए. हु इज गोइंग टू कॉल? Head is the call, Pioneer Sports Club, and tail it is. SK Enterprises आपने टॉस जीता है और क्या डिसीजन लिया है और क्यों? फील्डिंग करना चाहेंगे क्योंकि पहला मैच है और अभी काफ़ी समझ में नहीं आ रहा है बॉल किस तरह से होगा, तो इससे अच्छा है कि हम फील्डिंग करके सामने वाली टीम को कम रन पे रोकने की कोशिश करें. बीपीएल की खुशियां तो वाकई में जश्न मन चुका होगा, लेकिन इस वक्त इस टूर्नामेंट का जब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद आपको एक पर्याप्त समय मिला था. क्या आपकी टीम ने वाकई में अच्छी प्रैक्टिस की है जो यहाँ पर अच्छा मुकाबला खेलकर दिखाएगी? सर मैं इतना ही कहूँगा, बीपीएल पास था, अब ये प्रेजेंट है, इसके ऊपर फोकस करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस की है इस टूर्नामेंट के लिए. और यहाँ पर महापौर चषक की वापसी भिवंडी में होना, ये आप इसको किस तरह देखते हैं? सर देखिए ये तो ड्रीम है हर किसी के लिए और ये मेरा तीसरा ही मेयर कप है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं चाहता हूँ कि हर साल होते रहे. विलासर साहब से रिक्वेस्ट है कि हर साल इस टूर्नामेंट को कराते रहे. और माशाल्लाह पिस्ता कलर के ड्रेस में आप जज रहे, हो सकता है कि मुकाबला जीतने के बाद आप पिस्ता आइसक्रीम भी खाएं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है. जुल्फिकार, जुल्फिकार का मतलब होता है तलवार, वार करना. जुल्फी आप
पहले बैटिंग करने जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर स्कोर आपके जहन में है? Yeah, we will try to keep our 50 plus and all. Zulfikar, again the same question to you. How do you feel coming here and playing in Mayor Cup, which is one of the largest and the biggest extravaganza on the earth? I would like to thank the entire staff of Challenge Sports Club for making this event very successful, and it's very lovely to play on this ground. And are you guys have done enough practice to ensure that you go ahead in this tournament? Yeah, definitely. We have many senior players in my team, so we will give our 100% in this match. So the news from the middle is toss is won by SK Enterprises and they have invited Pioneer Sports Club to bat first. The match comes live to you in a short while from now. Stay tuned. Thank you. धन्यवाद हरीश पंड्या। खेल की शुरुआत होती भी और माइक्रोफोन पर बहुत ही यंग डैशिंग कमेंटेटर ओमकार शेट्टे। थँक्यू। गर्व आहे शेंदूर गुलालाचा आणि गर्व आहे बेधुंद तुतारीचा, गर्व आहे विठू माऊलीचा, त्यांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याच्या शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा, आणि आम्हाला गर्व आहे भिवंडीकरांना महापौर चषकाचा। पहिलाच बॉल ॲड होईल एक सिंगल। भिवंडी नव्हे तर टेनिस बॉल क्रिकेट क्षितिजावरची एक भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा अपन एंजॉय करतोय। मेयर कप 2021। बहुत बढ़िया पुश शॉट खेला था वहां पर मतीन खान ने, फ्रंट फुट को आगे निकाला था। मयूर वाघमारे व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन ॲड होईल, टार्गेट 40। देखिए ओमकार, मयूर वाघमारे को लगातार विकेटें लेनी होंगी अगर इस तरह के मैच को आपको जीतना है, क्योंकि बिलाल शेख भी एक बहुत कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है। बहुत खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बिलाल शेख को। इसीलिए तो मैं कहता हूं, आपने कश्मीर देखा, आपने कन्याकुमारी देखा, आपने महापौर चषक नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। टार्गेट अतिशय चांगलं आहे, बॉलिंग चांगली झाली तर मॅच चांगली रंगेल। इष्टांच्या मागे बॉल फील्ड झाला, एक सिंगल अजून ॲड होत असताना स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर से ऊपर लगी थी, लेकिन फाइन लेग के फील्डर तक कैरी नहीं हुई थी। रजतनं अतिशय चांगली बॅटिंग केली, एक फायटिंग टोटल जे हवं होतं ते मिळवून दिलं रायगड क्रिकेट टीमला। बॅटची लिडिंग एज आणि यष्टी रक्षक डाऊन द बॉल, पहिला धक्का लक्का टीम ठाणेला। ये भिवंडी के दर्शक है, हर अच्छे क्रिकेट की सराहना करते हैं। देखिए क्या शोर उभरा था जब मतीन खान आउट हुए थे। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए। बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी, ऊपर लगी थी, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। और मयूर वाघमारे अपनी टीम को पहली सफलता दिलाते हुए। रायगड क्रिकेटमध्ये अगदी कमी वयात ज्यानं मोठं नाव करलं ते नाव म्हणजे मयूर वाघमारे। वाकई में आज मेरे साथ दो बहुत ही स्मार्ट कमेंटेटर प्रियांशी स्टूडियो में है, एक तो ओमकार शेट्टे हैं और एक अजय घरत है। वैसे भी आज यौम मोहब्बत है। मॅचकडे आपण वळू। मयूर वाघमारे 3 धावा खर्च केलेत, एका फलंदाजाला त्यांना बाद केलं, चांगली रंगेल। पहिले 2 षटक जर दबाव आला तर मॅच मध्ये फाईट करू शकतोय संघ रायगड। ओव्हर द विकेट फटका अतिशय सुंदर, इनफिल्डच्या वरनं ढकलला बॉलला अंगद पाटील, अतिशय सुंदर थ्रो, त्याच वेगानं 2 धावा देखील कंप्लीट झाले। टार्गेट फक्त 41, 6 ओव्हरची मॅच, 36 बॉल 41 रन। देखिए बिलाल शेख रन के लिए हिरन बन गए। पहला रन बहुत तेज लिया, आउटफील्ड में प्रेशर बढ़ाया, और दूसरा रन भी बहुत तेज कदमों से पूरा किया। एक विकेट मिळाली आहे मयूर वाघमारेला, मतीन खानला त्यांना बाद केलं। आता त्याच्या समोर आहे प्रतीक पाटील, सुंदर बॉल, सन्मान देण्यास भाग पाडला प्रतीकला। मयूर वाघमारेकडे वेग प्रचंड आहे, टप्पा अतिशय चांगला आहे आणि दिशावरती नियंत्रण देखील तितकं चांगलं आहे। आणि पहिल्या षटकामध्ये
जे हवं होतं ना या मॅच मध्ये रायगडच्या कॅप्टन ओमकार पाटीलला ते मयूरनं करून दाखवलं. 5 धावा खर्च केल्या, मतीन खानला त्यांना बाद केलं आणि मॅच मध्ये सांगितलं आता की या मॅच मध्ये संघर्ष अगदी मोठा होईल आणि सध्या धन्यवाद. रायगडची परिस्थिती पाहिली. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. मित्रांनो, आपण एक सत्कार घेणार आहोत. सन्माननीय संजय मात्रे, किशोर वारे आणि हंसिका स्पोर्ट्स यांच्या वतीने आपल्या महापौर सौ प्रतिभा विलास पाटील यांचा एक भव्य सत्कार होतोय आणि महापौरांना माझी नम्र विनंती आहे की आपण ह्या सत्कार स्वीकार करावा. भिवंडीच्या महापौर म्हणून आपण जबरदस्त कामगिरी पार पाडत आहात. तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी लक्ष लक्ष शुभेच्छा. विजयी भव. संजय मात्रेजी, त्याचप्रमाणे किशोर वारे आणि पूर्ण हंसिका टीमच्या वतीने महापौर मॅडम आम्ही आपला सत्कार करीत आहोत. आपण या सत्काराचा सहर्ष स्वीकार करावा आणि आपण खूप प्रगती करावी अशी गणपती बाप्पा चरणी प्रार्थना आहे. एक क्रिकेट बॅट दिली गेली आहे. अंगद पाटिल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है क्योंकि यहाँ से रायगढ़ टीम चाहती है कि विकेटें लेकर दबाव बढ़ाए. आणि तोच अंगद पाटील आहे ज्यानं रेस्ट ऑफ महाराष्ट्राला हरवलं होतं. अंगद पाटील ओव्हर द विकेट, बॉल हवेत, इष्टांच्या मागे बॅकअप दिलं जाईल. तो म्हणते 1 रन ऍड होईल. धावफलकावरती 7 ला विकेट गेली आहे 1. आणि अंगद पाटील बद्दल बोलायचं झालं तर एकच म्हणेल, आई तब बारी मेरी जब आधा किला ढेर था, काप रहे थे विपक्षी तब भी क्योंकि जिंदा भी अंगद पाटिल नाम का शेर था. चांगली रंगेली मॅच. Yes, last one was an unconventional stroke played by Pratik Patil. स्विच हिट, स्विच आणि अगदी स्विच आणि हा फटका येतोय बिलाल शेखच्या बॅट मधून. बॉल जातोय धन्यवाद षटकार. कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद मित्रांनो. आपला सन्माननीय शोएब गुड्डू साहेब उपस्थित आहेत. भिवंडी काँग्रेसची जबाबदारी चोखपणे त्यांनी एवढी वर्ष पार पाडली, जिल्हाध्यक्ष म्हणून भूषविलं. आणि उजव्या बाजूनी सन्माननीय कपिल पाटील साहेब आपले खासदार आणि त्यांच्यासोबत मोहन अंधेरे साहेब. खूप दिवसांनी त्यांची भेट होते. तर खासदार साहेब यांचं आपण मनापासून स्वागत करीत आहोत. महापौर चषक 2021 या क्रिकेटच्या धूमधडाकामध्ये सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. मित्रांनो, दरवर्षी 5 मार्चला ज्यांचा वाढदिवस असतो आणि लोकसभेमध्ये भिवंडीचे प्रश्न अगदी चोखपणे मांडणारे तुम्हा आम्हा सर्वांचे भिवंडीचे राजा कपिल पाटील साहेब यांचं पुनश्च स्वागत आहे. सुस्वागतम. एज एंड गॉन. क्या गेंद थी अंगद पाटिल की, बल्ले का किस लेकर पहुंची थी विकेट कीपर के पास. आज व्हॅलेंटाईन डे आणि आज क्रिकेटवरती प्रेम किती आहे भिवंडीकरांचं, ही त्यांची उपस्थिती, हा त्यांचा आवाज आणि हा त्यांचा जल्लोष महापौर चषक आपल्याला दाखवतोय. माझा आज प्रेमाचा दिवस हे देखील विसरून चालणार नाही की आजच्याच दिवशी पुलवामध्ये अनेक शहीद झाले. त्यांना देखील विलासर पाटील आणि प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडनं या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून भावपूर्ण श्रद्धांजली. और वाकई में क्या खूबसूरत कैच पकड़ा था वहां पर विकेट कीपर ने. अभी भी देखिए मैच स्टिल ऑन, क्योंकि ये जो टोटल है ये भी कोई छोटा टोटल नहीं है. जब गेंदे कहीं ना कहीं बल्ले पे पूरी तरह आ नहीं रही है, बड़े शॉट्स लगाना मुश्किल है. ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, ये जो बल्ला दिया गया है. देखिए दुनिया का, पूरे महाराष्ट्र का क्रिकेट, पूरे देश का क्रिकेट इतनी ऊंचाइयों पे गया. मेरा अपना मानना है कि भिवंडी से जो क्रिकेट ऊंचाइयों पे गया है उसका सारा क्रेडिट जाता है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार को. आज आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, भिवंडी के क्रिकेट को आप नंबर 1 ही कहते हैं. येस, आणि भिवंडी क्रिकेटचा वर्ल्ड कप म्हणजे मायर कप आणि त्याच टुर्नामेंटचा आनंद. पहिलीच मॅच ठाणे रायगड, ये तो झाकी है, पूरी कहानी अभी बाकी है.
ऑन साइडला मयूर दातीलकरच्या बॅटमधनं चेंडू जाईल एक टप्प्यावरती सीमारेषा बाहेर आणि मयूर दातीलकरच्या बॅटमधून पहिला चौकार येतोय टीम ठाणेसाठी आणि धावफलक 4 ने पुढे सरकेल. स्कोर मोज ऑन 17. Great stroke played by Mayur Datilkar. Look at that around the off stump and slogging dash ball. Left of the fielder, one bounce cross the fence for 4. चौकारानंतर कमबॅक करत असताना बॉल अंगद पाटील आणि 2 षटकांचा खेळ संपन्न झाला. आप देख सकते हैं सम्मानीय खासदार कपिल पाटिल जी, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल जी और सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटिल मैडम, महापौर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका प्रियांशी पाटिल और दीगर मेहमानों को सभी का हार्दिक स्वागत है. वेलकम ऑल ऑफ यू. क्योंकि आप देख रहे हैं A1 इंडियन क्रिकेट महापौर कप 2021. आज मेरे साथ प्रियांशी स्टूडियो में 2 बहुत ही युवा कमेंटेटर हैं और कमेंट्री में भी काफ़ी नाम कमाया है. अजय गरत को मैं आवाज़ दूंगा कि खुदा करे मेरे दिल को करार मिल जाए, खिजा के साथ चलूँ और बाहर मिल जाए. मुझे तो जितने मिले सारे बेवफाई मिले, दुआ ये है कि तुझे सच्चा प्यार मिल जाए. शुक्रिया सिद्दीक जी. सच्चा प्यार आपका तो मिल ही रहा है हमें, लेकिन गेंदबाज बल्लेबाजों से प्यार नहीं जताना चाहेंगे. अच्छी शुरुआत की है दोनों भी युवा गेंदबाजों ने. नया ओवर लेकर मयूर वाघमारे. पहला ओवर बहुत सफल रहा था, 5 रन देकर 1 विकेट लिया था, 6 रन बल्कि खर्च किए थे. ऊंचा शॉट स्लॉक किया है ऑन साइड में और गेंद मैदान के बाहर. प्रतीक के बल्ले से शानदार छक्का. कमाल का शॉट. आइए देखते हैं रिप्ले में. हल्की सी शॉट गेंद थी अजय. ये देखिए बैकफुट पे चले गए, एलिवेशन बहुत खूबसूरत, चाबुक शॉट, पुल और पावरफुल, वंडरफुल शॉट हम पुल किया था. हालांकि हल्की सी शॉट गेंद थी, लेकिन ये सिक्सर आने से मैच का संतुलन बिगड़ गया. हाँ बिल्कुल. स्कोर 23 पर पहुंच चुका है और इस बार इम्प्रोवाइजेशन, बहुत ही शानदार शॉट. फील्डर बहुत दूर है और क्या पहुंच पाएंगे. कोशिश बढ़िया, रोका है बाउंड्री के अंदर लॉन्ग लेग की दिशा में. तीसरे के लिए जाना चाहते थे और अपना विकेट यहां पर फेंक दिया है प्रतीक पाटिल ने. 2 रन मिले थे, तीसरा रन नहीं था उस गेंद पर और अपना विकेट फेंक कर पेविलियन में लौटते हुए प्रतीक पाटिल. अननेसेसरी रन लेना चाहते थे. कहा जाता है कि लालच बुरी बला है. अजय मेरा मानना है लालच खूबसूरत बला है. एक बार गले लग गई तो गला ही दबाती है. आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए थे वहां पे प्रतीक पाटिल. बहुत बढ़िया थ्रो पहुंचा था डीप से कप्तान का और ये देखिए निशाना ठिकाने पे आउट हो गए प्रतीक. तीसरा झटका यहां पर लगता हुआ ठाणे टीम को. स्कोर अभी भी रुका हुआ है 25 रन. स्थिति अच्छी कही जा सकती है ठाणे टीम की. पहले तो गेंदबाजों ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया, 40 रनों तक सीमित रखा 6 ओवर्स में रायगढ़ टीम को. और बल्लेबाजी में हालांकि 3 बैट्समैन जरूर आउट हुए हैं. तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है, लेकिन अच्छा स्कोर 25 रन. टारगेट है 41 रनों का. जीतने के लिए अब केवल 16 रनों की आवश्यकता. अच्छे टच में नजर आ रहे थे प्रतीक पाटिल, लेकिन रन आउट हुए. नए बैट्समैन जयेश पाटिल टेक्निकली बहुत साउंड माने जाते हैं. लेट कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए. बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया था जयेश पाटिल ने. अधिक रफ्तार थी इस गेंद में. मयूर वाघमारे पिछले 2-3 सालों से हम देखें तो बहुत ही सफल गेंदबाज रहे हैं. इस बार स्वीप किया है, संभवतः हवा में खेलना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए. डिप स्क्वायर लेग, डिप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ वहां पर खिलाड़ी मौजूद. 1 रन लेने का अवसर. जयेश पाटिल का खाता खुलता हुआ और ठाणे टीम कहा जा सकता है कि जीत की तरफ अग्रसर है. इस समय 26 रन बने हैं, यहां से मात्र 15 रनों की आवश्यकता है इस ओवर के बाद और 3 ओवर का खेल बचा हुआ है. रायगढ़ टीम को यह मैच जीतना है तो करिश्माई गेंदबाजी करनी पड़ेगी. ऑन साइड में थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी गेंद. फील्डर मौजूद है डीप मिड विकेट पर. मयूर दातिलकर भी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपना खाता खोला था, पहली गेंद पर जिस तरह से बड़ा शॉट खेला था और चौके से अपने पारी का आगाज किया था, काबिल तारीफ.
Yes, I think Mayur Datilkar, one of the key player in tennis cricket. मयूर दातिलकर जो ग्रामीण क्रिकेट में फड़केपाड़ा टीम के लिए खेलते हैं। बढ़िया शॉट, अच्छी गेंद थी, फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, बैट का फेस खोला, दिशा दिखाई और दूसरे के लिए पलट चुके हैं। ये तो खासियत है जयेश पाटिल की, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन पूरे और इसके साथ ही ओवर पूरा होता हुआ। 3 ओवर के बाद 29 पर 3 ठाणे। बिल्कुल बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट लेते हैं। ये आप देख सकते हैं फिर से वीआईपी डाइस पर सम्मानीय खासदार कपिल पाटिल साहब, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर जी और प्रथम नागरिक सौभाग्यवती प्रतिभा विलास मैडम, महापौर भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की प्रियांशी पाटिल भी आज वहाँ नजर आ रही है दीगर मेहमानों के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत का एवन क्रिकेट महापौर चषक 2021। 18 गेंदें बची है और जीतने के लिए केवल 12 रनों की आवश्यकता ठाणे टीम को। दर्शकों से खचाखच भरे हुए स्टैंड्स। ये साउथ स्टैंड जो बताया जा रहा है, पैक क्राउड है। और देखिए सिद्दीक जी, मेयर कप की जो तुलना है वो केवल मेयर कप से ही की जा सकती है। क्या बात कही आप। वो जो कहते हैं कि हीरा हीरे को काटता है, मेयर कप की तुलना आप सिर्फ मेयर कप से कर सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। कई सारे आविष्कार मेयर कप में हमने देखे हैं। पिछले सीजन में जब मेयर कप हुआ था, पिछले सीजन में नहीं, 2016 में जो प्रतिभा विलास सेवन कप हुआ था, उसमें हमने स्पीडोमीटर का भी इस्तेमाल देखा था। यस, जय पाटिल हमारे साथ में यहाँ पर प्रियांशी स्टूडियो में, मयूर पाटिल भी हैं। देखिए इस तरह का जो इक्वेशन रहता है अजय गरत, यहाँ पर गुच्छों में विकेटें लेना होती है। करण मडवी के हाथ में है गेंद, बॉलिंग में चेंज किया गया है। एक और युवा खिलाड़ी बायत के गेंदबाज है, क्षमता रखते हैं कि गुच्छों में विकेट निकाल सकते हैं। यस, एडवोकेट मयूरेश पाटिल को दिखाया जा रहा है, बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी। करण की पहली गेंद, आगे रखी हुई गेंद, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, लेग बाई का इशारा किया है अंपायर ने। और अब इससे बल्लेबाजों को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है कि रन किस तरह से आ रहे हैं। रन्स आने जरूरी होते हैं जब आप लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट खेलते हो, खासतौर पर जैसे कि कहते हैं ना कि जब आप कोई संकट में फंस जाते हो, आप अपने दोस्त को कॉल करते हो, तो दोस्त का आना जरूरी है उस समय, चाहे फिर वो गाड़ी में आए या दाढ़ी में आए। वैसे रन्स होते हैं क्रिकेट में, आने जरूरी। क्या बात है, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर थी। रायगढ़ टीम के दृष्टिकोण से देखा जाए सिद्दीक भावे, तो मुझे लगता है कि सिंगल्स उनको बचाने पड़ेंगे। डॉट गेंदें ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजों को करनी पड़ेगी, विकेट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि समीकरण बहुत आसान है। 17 गेंदें बची है, मात्र 11 रनों की आवश्यकता है ठाणे टीम को। अब स्लिम मिड ऑफ लगाया गया है। जी हाँ, नजदीकी फील्डर्स का होना अब जरूरी हो गया है रायगढ़ टीम के लिए, क्योंकि लेस देन रन बॉल इक्वेशन है। मेयर कप 2021 का ये उद्घाटनीय मैच ठाणे बनाम रायगढ़। स्वीप कर दिया है, फाइन खेल दिया है, फील्डर बहुत दूर है, कम से कम 2 रन तो ले जाएंगे यहाँ पर जयेश पाटिल। मयूर दातिलकर गेंद की तरफ देख रहे थे और चहलकदमी करते हुए उन्होंने दूसरा रन पूरा किया है। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं थोड़े से कंधे झुक गए हैं रायगढ़ टीम के खिलाड़ियों के। बिल्कुल झाड़ू शॉट खेला था। आपने सिंगल्स की बात की, देखिए अजय गरज सोने के आप 100 टुकड़े कर दे तो उसकी कीमत नहीं कम होती है। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो रायगढ़ टीम का बड़ा नाम है। थोड़ा मायूस किया रायगढ़ के बल्लेबाजों ने। परिस्थितियों को ठीक तरह से बल्लेबाज भाप नहीं पाए। शुरुआत में खासतौर पर मैं समझता हूँ जिस तरह की उनकी शुरुआत रही थी, विकेट्स जल्दी गवा दिए उन्होंने, 2 विकेट जल्दी गिरे थे, उसी से दबाव बना था। हवा में है गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई गलती नहीं और जयेश पाटिल आउट। स्कोर अभी भी क्या हुआ है?
32 रन में जयेश पाटिल आउट होके जा रहे हैं। हालांकि उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। ये देखिए किस तरह से उन्होंने झाड़ू शॉट खेला था, सीधा फील्डर को पाया डीप में बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे। नए बैट्समैन, ये जो शोर उभर रहा है, भावेश पवार बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर। जी हाँ, दर्शकों के शोर से पता चलता है कि कितने चहीते खिलाड़ी है भिवंडी में भावेश पवार। कप्तान है ठाणे टीम के। माइक गेटिंग कहा करते थे कि बैट्समैन को अगर आउट करना है तो उसको उसकी मनपसंद शॉट खेलने की गेंद दी जाए। एक मारेगा, दो मारेगा, तीसरे में कहीं ना कहीं गलती कर बैठेगा। बिल्कुल सही, जो आपकी ताकत होती है ना वो कई बार आपकी कमजोरी भी बन प्रियांशी जाती है। स्टुडिओ मित्रांनो, आता आपण एक भव्य सत्कार करणार आहोत. आपले खासदार सन्माननीय कपिल पाटील साहेब आज उपस्थित आहेत. भारताचा संसदमध्ये जबरदस्त प्राणप्रश्नांचे जाणीव असून ते उपस्थित करत असतात. असे सन्माननीय कपिल पाटील साहेब यांचा सत्कार करतील आपल्या महापौर. कपिलजी, आपला पुढील वाटचालीसाठी लक्ष लक्ष शुभेच्छा आहेत. भिवंडी शहराला विकासाकडे नेणारे खासदार आपल्याला लाभलेत, हे आपलं अहोभाग्य म्हणावं लागेल. खूप खूप धन्यवाद. सन्माननीय मोहन अंधेरे साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा आता आपण सत्कार करणार आहोत. मी अजय पाटील यांना विनंती करणार आहे, आपल्या शुभ हस्ते मोहन अंधेरे साहेब यांचा सत्कार करावा. अजय, इसे कहते हैं 100 सुनार की, 1 लोहार की, और ये भावेश पवार की. गजब का शॉट, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है भावेश पवार पर. स्विंग किया ऑन साइड में, थोड़ी सी ऑफ स्टंप की तरफ आती हुई गेंद थी, स्लाइटली फुलर लेंथ, बिल्कुल स्लॉट में थी भावेश पवार के लिए. और कहीं ना कहीं सिचुएशन भी भावेश पवार के लिए काफी अच्छी है. टीम की स्थिति काफी मजबूत, उसको और मजबूत बनाते हुए इस सिक्सर के साथ भावेश पवार. 39 रन बने हैं. इस बार उल्टा शॉट गैप में और 4 रन. इसके साथ ही ठाणे टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है. शानदार जीत ठाणे टीम की. यस, ठाणे इज द चैंपियन. ठाणे ने मुकाबला जीत लिया है. कॉन्ग्रेचुलेशन कैप्टन भावेश पवार एंड ऑल ठाणे टीम. 8 लाख रायगर. इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मैन फ्रॉम अलीमगढ़ हिमांशु पाटिल. 1 ओवर 4 रन एंड 2 विकेट. ओवर टू हरीश पंड्या. बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी स्टूडियो.